हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर फाइन. कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था. आई मेड अ स्मॉल वीडियो एंड आई जस्ट पुट इनटू माय यूट्यूब. दैट वाज माय फर्स्ट मोटिवेशनल video, you can say, that flags transformational speaker. So the first thing what I want to tell you guys is transforming can only be happen when you guys think about yourself to make a change. Otherwise it is not going to happen. Otherwise, if you ask me that if I am sitting here and giving you some blah blah stories and my experiences and those things, वो होने वाला नहीं है. So first you need to transform yourself. So how the transform you will do yourself is first, think about yourself. What kind of qualities you have, what kind of skill sets you have which you can enhance. More or less, the comparison, you don't do comparison with people. When you start comparing with people, what happens. तो तुम जब दूसरों से कंपेयर करना चालू करते हो ना, then it doesn't make any sense. Then you look your things are, you're not looking at the proper this thing, you understand. तो आप किसी और के नज़रिए से देखते हो ज़िंदगी को. तो ज़िंदगी को जिस तरीके से आप आपके नज़रिए से जब देखना चालू करोगे, तो मेरे ख्याल से इट विल बी प्रॉब्ली more visible and more you can explore yourself, the new avenues. So for me, when I see my kind of 25 years of experience, when I started 1996, I started into sales. It was very difficult. मतलब sales बहुत easy काम नहीं था मेरे लिए. मतलब the only one thing which I had is because I can talk. Apart from that, I didn't had any other what do you say, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ या एक्स्ट्रा कोई चीज़ मेरे हाथ में तो नहीं था मेरे पहले भी नहीं था मेरे पास. अभी आई डोंट थिंक सो आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा दोज थिंग्स एंड ऑल. हाँ, मैं बात कर सकता हूँ एंड आई कैन प्रॉब्ली टॉक इफ यू गिव मी सम concept or maybe some topics and those things. I can talk on that, and that possibilities are there. But so when I started with that, marketing as well, sales and marketing, when I started, I remember I started with a company called Payless Marketing. That was my first this thing, which I have not never given in my resume because थोड़ा टाइम का था. But literally that 6 to 8 months gave me a change, the way I was looking into sales and marketing. मैं पहले ये देखता था कि बंदे टाई वाई पहन के जा रहा है, तो उस ज़माने में पेजर भी होता था किसी के पास. तो इट वॉज नॉट टू एवरीबडी हैड द पेजर, मतलब जो सीनियर लेवल में होते थे उनके पास पेजर होता था. So the way I was thinking that यार something is there in this, so I started there. So when I started with that company was purely into door-to-door kind of marketing. So if you want to exactly get an experience into sales, I think you need to start from door-to-door marketing. Door-to-door sales and marketing will give you the exposure and it will enhance your skills as well, if I am not wrong. Because when I started with जब door-to-door marketing में करना चालू कर दिया, then I'll tell you, it was very difficult. It's not easy. एक बहुत बड़ा बैग हुआ करता था, उसके अंदर बहुत सारा कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर्स, फ्राइंग पैन्स, ये सब हुआ करता. देन वी यूज्ड टू गो टू मिलत नगर, कैरी दिस थिंग फ्रॉम थाने टू मिलत नगर. द ऑफिस वाज इन थाने, सो वी यूज्ड टू कैरी दिस एंटायर थिंग्स इन वन बैग. और बैग भी बहुत बड़ा था. और उस ज़माने में अभी भी मैं कोई ऐसा मतलब मोटा तो नहीं हूँ मैं अपना. तो उस ज़माने में मैं इससे भी पतला था. तो देन कैरिंग अ वेरी बिग बैग, वो बैग मेरे से बड़ा लगता था अगर देखा जाए तो उसको लेके देन myself and my friend used to be there, and we used to go for door-to-door marketing, and we used to go अंधेरी that मिलत नगर. तो उधर जाके उतरने के बाद में then we used to see the societies and apartments, कौन सा अच्छा सोसाइटी है, कौन सा अपार्टमेंट है. then we used to say that okay, A ब्लॉक में तुम जाओ, B ब्लॉक में तुम जाओ. then we used to segregate the blocks and we used to go there. तो वहाँ जाके डोरबेल बजाता था. but that's a very bitter experience, I'm telling you. मुझे ये लगता है कि बट वो होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज तुम अपने आप को जानने के लिए एंड तुम्हारा स्किल सेट को एनहांस करने के लिए ये सब एक्सपीरियंस गो थ्रू होना चाहिए. क्योंकि व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट देयर, द फर्स्ट अपार्टमेंट आई वेंट टू अ फ्लैट, आई जस्ट रैंग द बेल, दे केम आउटसाइड, दे जस्ट लुक्ड एट मी. तो एक टाई था एंड एक छोटा सा एक ID कार्ड हुआ करता था उस टाइम पे, ID कार्ड भी था. देखा, ऐसा देखने के बाद में जस्ट द पर्सन हु केम आउटसाइड, दैट पर्सन जस्ट लुक्ड एट, कौन है? सर कंपनी से आया हूँ, पेलेस मार्केटिंग से. थोड़ा सामान है इसके अंदर, कंटेनर्स वगैरह, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स का थोड़ा सामान है. तो वी आर गिविंग इन प्रमोशनल प्राइसेस एंड दोस थिंग्स विच यू विल नॉट गेट द रिटेल. वो सब थोड़ा पढ़ाने लगा. जस्ट उसने देख के मेरे को क्या बोला, मैं तुम्हारे जैसे बहुत पब्लिक आते हैं यहाँ पे टाई वाई पहन के चोरी करने आते हैं, सारे सब चोर है, ठप बंद कर दिया.
वो जब ठप करके जो बंद हुआ ना, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई फर्स्ट डे था, दैट वाज द फर्स्ट डे, फर्स्ट सेल्स। और जब बंद हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि लिटरली मेरे को देखने में चोर लग रहा है क्या, मतलब मेरी शक्ल के ऊपर देखने का चोर जैसा लग रहा है यार। मतलब बहुत कुछ ख्यालात आ जाते हैं ना, कि बाद में ऐसा लगा कि जब फिर बैग पैक किया उधर बैठ के, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सेल्स, ये सेल्स या ये नौकरी, ये प्रोफाइल मुझे जमेगी या नहीं जमेगी। क्योंकि मैंने जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने जस्ट देख के मेरे को सीधे देख के बोला तुम्हारे जैसे बहुत चोर। तो आई वॉज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड, आई वॉज फीलिंग ऑकवर्ड। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था सामने वाले से। मैंने फिर मेरे दिमाग में आ रहा था साले सब पैसे वाले लोग हैं, साले यहाँ पे रहते हैं और इन लोगों को तमीज़ नहीं कैसे बात करना, ये करना। तो यू फील दैट कि स्टार्टिंग स्टेज में जब when you start choose a career into sales, I'm telling you, when you choose a career into sales, and these are the experience which you need to go through, because these are the experiences which will shape your sales career exactly. So door to door marketing, for me door to door sales and marketing need to be there if anybody wants to go into the field of sales and marketing. Because then you are feel, when you go there, you feel that all certain times you feel that no, you are carrying a tag of graduate, you are graduate, you have the tag of MBA, but जब तुम उधर सामने जाते हो ना फर्स्ट सेल करने के लिए, और डोर टू डोर मार्केटिंग में जब पहला दरवाज़ा खुलता है एंड देन द वे दे रिएक्ट, तभी समझ में आ जाता है कि भाई इट इज़ नॉट ईजी। तुम्हारी पूरी जो बोलता है ना, तुम्हारा जो वे ऑफ थिंकिंग जो रहता है ना, बहुत हाई रहता है कि भाई MBA फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट, वो सब निकल जाता है वहाँ पे। वो एक दिन में निकल जाता है, वो एक दिन में निकल जाता है। या तो फिर तुम नेक्स्ट डे तुम सोचो कि भाई दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ दिस थिंग, मैं नहीं कर सकता, आई बेटर आई चूज सम अदर कैरियर बिकॉज मेरे से नहीं होता। बट जो बंदे वहाँ पे टिक जाते हैं वही बंदे एक्चुअली सेल्स कर सकते हैं। मतलब दोस आर द गाइज हु कैन फ्रंट एंड द कंपनी, बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ यू टेक टुडे, इफ यू टेक any organization, if you are taking any organization, if you take today, the person who leads the company will be the sales. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी होगा तो भी वहाँ पे सेल्स के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज आई कैन मैन्युफैक्चर, मेरा बस फैक्ट्री है, आई कैन मैन्युफैक्चर न्यू, आई कैन इनोवेट समथिंग, एवरीथिंग इज डन, बट एक्चुअली द कंपनी को लीड करने वाला बंदा सेल्स का बंदा ही होता है, क्योंकि वही तो बिजनेस लेके आ रहा है, वही तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। दैट इज द पर्सन हु रेवेन्यू जनरेट्स द रेवेन्यू। So I feel, when I was learning that my kind of management studies and those things, I always दिमाग के अंदर होता था कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के अंदर जब हम काम पे जाते हो एंड द पीपल व्हेन वी हैव अ डिस्कशन और मे बी, तो ये सीनियर लेवल पे होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जो जूनियर लेवल में ये सब नहीं होता है, जूनियर लेवल में दे जस्ट सी दैट वेदर द पर्सन इज ओके, ही कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, ही अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो उसको ले लेता है। लेकिन जब व्हेन यू गो फॉर अ सीनियर काइंड ऑफ प्रोफाइल, दिस आर द सर्टन थिंग्स विच कम्स which they will see that कि भाई इसको ROI के बारे में मालूम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज आई स्टार्टेड लर्निंग, कि मैं थोड़े टाइम के बाद लर्न करने चालू कर दिया कि भाई क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, 10 रुपया डाला तो 12 रुपया तो आना चाहिए, तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मोटा मोटी 2 रुपया जो आ गया वही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं फिर ये लगा कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान हम लोग देते हैं। अभी आजकल अगर कोई भी यू सी वॉट एवर द सेल्स रिलेटेड कंपनीज और ब्रांडिंग कंपनी, उनका दिमाग उसके अंदर ही रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, लेकिन यू नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन रिटर्न ऑन इंटेलिजेंस, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज देयर, रिटर्न ऑन इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस यू नीड टू बी देयर। Then I can say return on value addition as well, ROV. It's a new terminology. Every time you say ROA, right? We can also say that different terminology is coming. So return on intelligence about the market, about the competition, कौन कौन competition market के अंदर है और जो brand मैं बेच रहा हूँ, whether it is adding a value to the end customers. Value to the end customers, right? Whether it is value adding to the end customers. So return on intelligence, return on value addition need to be there. When you focus on return on intelligence and return on value addition kind of people are there in your organization to work, 100% return on investment will come. अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी मैंने बहुत सारे कंपनीज, व्हेन आई वाज डूइंग कंसल्टेंसी एंड दोस थिंग्स, आई हैड सीन लॉट ऑफ कंपनीज हु आर अक्रॉस, बीन डन
consultancy for Africa, East African countries, small brands to develop in East Africa. So I do that kind of work as well. तो मैं जब भी वो देखता हूँ तो मैं मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि आई हैड सीन few people like MBA people, graduates and MBA graduates, management graduates with good universities and those things. The only problem with them is what they are not ready to move out from the comfort zone. बहुत कम लोग हैं, they are not ready to move out from the comfort zone, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं देखा है कि they are well at PPT presentation and what I am telling is return on investment का जो Excel sheet जब बनाना, they are good at Excel sheet and PPT presentation, but ground reality they doesn't know and they don't want to know also. The reason why the ground reality why they don't want to know is one उनको ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं, रियलिटी से कोई मतलब नहीं, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी, इफ यू वांटेड टू नो द ग्राउंड रियलिटी यू नीड टू बी ऑन द ग्राउंड. अगर तुम ग्राउंड में होगा तो रियलिटी मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द फील्ड, व्हाट द ब्रांड विच यू आर डेवलपिंग. तो मेरे हिसाब से until and unless your collars are not getting dirty, I don't think so you can be a good salesperson or you can be a good management, you can be a good sales manager or maybe head sales and those things. Until and unless your collar is not getting dirty to the dirty, you will not get the ground reality. So that thing is missing in current generation, if I see from my point of view. So it okay, so my first thing was door-to-door marketing, and I always says that door-to-door marketing enhances your skills, because you are going to the customers, to the doors where you don't know. Maybe उस दिन वो घर के अंदर अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके बैठा होगा या कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम जब दरवाज़ा खोलते हैं और वी आर गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और जब दरवाज़ा खोलने के बाद में जिस तरीके से दरवाज़ा बैंग करते हैं वो लोग, तो it makes your morale also little bit down. We are human beings. We cannot say that कि उस टाइम में भी मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूँगा, that I will be very positive. No. Morale goes down. Your morale goes down and you see what happens कि जब तुम किसी दरवाजे को खोलते हो, अब नोन घर है तो तुमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अननोन घर में जा रहे हो तुम लोग, तुमको मालूम नहीं उसका आज का उसका आज का माइंडसेट क्या है और किस हिसाब से बैठे. तो दरवाजा जब खोलते हो तुम तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो, इज़ नॉट इवन लिस्टिंग दैट, सीधा बोल देते चल भाग यहाँ से, बंद कर दे, तुम्हारे सामने दरवाजा बैंग कर दे. सो दोस आर द experiences which you get, and you can shape your sales career. So starting a career, you need to be very careful from your this thing, that कि career choose करते वक्त थोड़ा ना अपने आप अपना skill sets को देखो पहले, बस see the skill sets what you are having. Sales is not a very easy career to choose according to me. Sales is not a very easy career to choose. बहुत बंदों को मैंने देखा है सेल्स के अंदर, हमारे साथ में स्टार्ट किया, लेकिन वो 3-4 साल के अंदर सेल्स को छोड़ के देन दे स्टार्टेड लर्निंग समथिंग एल्स विच बिकॉज दे नो दैट कि सेल्स हमारा काम नहीं है. सो आई थिंक अ गाय हु सेज दैट इफ ही हैज़ गॉट 25 years or about 10 years of experience in sales means literally he has got lot of experiences to share with. So for me also, I will also try to share my experiences with you guys, where you can also have a change. Maybe क्या है कि certain experiences what I will say, maybe my experiences will be the same with you guys as well, because हम लोग एक flow में सब लोग एक ही चीज़ go through करते हैं. So thanks for watching my previous video. Very few people had watched my video, and there were a lot of people were telling me that there should be some kind of eye contact kind of things. That's why first video I just did for a few minutes जैसे बैठ के मैं किया. So probably my next videos whatever will come in a good way. So choose your career in a proper way, choose your career in according to your skill sets what you have, and I think go ahead. So have a nice day, enjoy your day my friends. So till next video. Thank you, bye bye, see you, take care.